एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ, ਸ਼ਮਾ ਜੈਨ, दीपक जैन, वनीता जैन, विशाल जैन, निधि जैन, सिल्की जैन, पमिल जैन, श्रीमती मंजू कांता जैन, मुदित जैन, गौतम जैन, दीक्षित जैन, नीतिका, तुलिका, याकनी, गार्गी, अतिशय जैन, दीक्षित जैन, सिद्धि जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਮਿਟਰੀ ਰੋਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਡਸਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਣ ਵਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ, ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਲਕੀ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿਲਕੀ ਜੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਮਿਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੀਵ ਜੈਨ, ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਅਸੈਸਰੀ ਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਆਤਮ ਜੈਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮੁਦਿਤ, ਗੌਤਮ, ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਤਿਸ਼य ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। जीवन साथी के रूप में है, माता पिता के रूप में है, दोस्तों और मित्रों और संबंधियों के रूप में है कि कोई उससे बिछड़ जाए। स्नेह का नाता इतना मजबूत होता है, हम इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते कि कोई बिछड़ जाएगा। परंतु आशातीत समय अनुसार हर जीव का पलायन हो जाता है और इस जीवन यात्रा में कुछ नए यात्री निरंतर हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। पहले वो माता पिता के रूप में मिलते हैं, भाई बहनों के रूप में मिलते हैं, दोस्तों मित्रों संबंधियों के रूप में मिलते हैं और ये यात्रा निरंतर चलती जाती है और इस यात्रा में कोई ना कोई साथी पिछड़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, नए यात्री आ जाते हैं। यही जीवन यात्रा का क्रम है, यही जीवन यात्रा है, यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी वास्तविकता है कि हम क्रमबद्ध रूप से इसको करें, भोगें। और उस क्षेत्र में भावनाओं का क्षेत्र बहुत ऊंचा है। जितना भी आयुष्य है, जितना भी धर्म है, कहते हैं कि बाहुबली भगवान अपने ध्यानस्थ मगन है, केवल ज्ञान रुका हुआ है। एक अभिमान थोड़ा सा है कि अपने बड़े भाइयों को वंदन करना पड़ेगा, परंतु जब बोल दिया जाता है तो वो स्वयं जब कदम उठाते हैं, भावनाओं का क्षेत्र इतना मिलता है तो वो उस केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारी भावनाएं
के लिए उपस्थित हैं। वर्षों से हमारे बीच में रहा, सबका अपना अपना योगदान रहेगा। पारिवारिक अपने भाव कह सकते हैं, समाज वाले अपने कहेंगे, दोस्त मित्र संबंधी अपने कहेंगे, परंतु कुछ पुण्य आत्मा ऐसी होती हैं जो सभी के लिए बेहद आदरणीय है और बेहद अनुमोदनीय जीवन जी जाती है। अपने संघ की बात कहूँ तो ये लोग पहले तो वहाँ रहे हैं सुंदर नगर में। अब पिछले 3-4 साल से मैं समझ रहा हूँ, ये सिविल लाइन क्षेत्र उन्होंने बनाया, एकोवाल क्षेत्र बनाया, और प्रतिदिन कोई नागा नहीं किया होगा जब जैन स्थानों में संत हों और वो ना आए हों। वो और उनके बेटे समाज के साथ प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित थे, लगातार मिलना होता था। अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात करूं, कल उनके बेटे समझा रहे थे, उनकी इतनी आयु थी, मैं कहा जरा पहले उससे मेरी बात सुन लो। हम लोग 70s में, यानी कि जब हम लोग 20 वर्ष के लगभग थे, तो इकट्ठे बहुत सालों तक क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो उसमें ये भाई कीमती लाल जी भी थे, सुरेंद्र मुंशी राम दीवानचंद वाले थे, अजीत के जैन वाले भी थे, और मैं तो 1-2 और नाम आ रहे हैं, नाम नहीं आ रहे, चेहरे याद आ रहे हैं। वर्षों तक हमने इकट्ठे सुबह जाकर क्रिकेट खेल ली, तो उस पर तो देसी भी रहा है, बाद में जिमखाना में रहे हैं। फिर समय अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में चले गए और मिलते मिलाते रहे। परंतु ये स्थानक हमारे ऐसे हैं कि सभी का जो अपना दूसरा घर है और जहाँ पर आकर हम सब लोग मिलते रहते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र मिला और कीमती लाल जी से वर्षों तक यहाँ पर उनको देखने का, बात करने का मौका मिला। बेहद ही खुश और सुंदर जीवन था, बेहद ही धार्मिक था। धार्मिकता इतनी थी कि कभी समय के बिना वो उन्होंने प्रवचन नहीं सुना, और उनके बेटे भी साथ ही बैठते थे। और उन्होंने क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि ये परिवार श्री कीमत सबूत श्री शोरीलाल प्रकाश बंती जैन दुग्गड़, ये जो जगह है दसका जो जगह है पाकिस्तान में, श्री करतारपुर साहिब का जो गुरुद्वारा क्षेत्र है 10 किलोमीटर का, 10 का उस क्षेत्र का है। आप देखिए, जो लोग उस वक्त तो हिंदुस्तान था, अब पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में से जब ये लोग आए हैं तो लगभग एक सी कहानी लेकर आए हुए हैं कि लगभग ये लोग सभी खाली हाथ ही आए हैं, और अपने कार्यबल से, अपनी दक्षता से, अपनी मेहनत से, सौभाग्य से, और अब तो कह सकते हैं कि बच्चों के सहयोग से, इन सभी लोगों ने, जो भी उस समय के आए हुए हैं, बड़ा बड़ा काम है। उन्होंने अपने लुधियाना क्षेत्र को, जहाँ पर आकर गुरु गोविंदों के चरणों में स्थान बनाया, और अपनी योग्यता के साथ उन्होंने यहाँ पर अपना सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र का रचना की है और समाज में नाम पैदा किया है। तो उन्हीं सौभाग्यशाली परिवारों में हमारे कीमती लाल जैन का भी परिवार है, जिन्होंने अपनी योग्यता से, कुशलता से, एक जिसको कहते हैं कार्य क्षेत्र में भी सिद्धता प्राप्त की। जब भी उनसे बात होती थी कि मैं प्रमोद बहुत खुश हूँ, सभी बच्चे अपना अपना कार्य करते हैं, मैं तो फ्री हूँ। तो ये सौभाग्य 70 की उम्र में जिसको मिल जाता है तो वो अपने आप में ही बहुत खुश होता है। बच्चे योग्य होते हैं, वो अपने क्षेत्र करते हैं और अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं, और उसी के अनुसार पढ़ते हुए परिवार में भी खुशहाली है और जो है समाज में भी अपना योगदान देते हैं। कीमती लाल जी रूप आश्रम जैन संघ के भी प्रधान थे। इसके अलावा बहुत सी संस्थाओं के साथ सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, चाहे वो राशन वितरण का क्षेत्र हो, चाहे वो यात्रा संबंधी क्षेत्र हो, और लुधियाना के सभी जिलों में, खासकर एपोवाल श्री संघ में बहुत नाम पैदा किया, बहुत सेवाओं का कार्य किया, और उस जगह भी फिट हो जाते जब समाज को जरूरत भी, आप इस जगह क्या करें, तो कीमती लाल जी उस जगह पर उपस्थित रहते थे। आज लुधियाना के समस्त संघ और सुंदर नगर क्षेत्र का भी सजीव संघ उपस्थित है, जहाँ पर इन्होंने क्षेत्र बनाया, और सिविल लाइन का भी क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने कार्य करके दिखाया, और योग्यता के साथ आगे बढ़े। सभी गुरु ग्रंथों की सेवा में संलग्न रहे, अप्रद रह गए सभी संघ कि ये क्या है कि जो श्रावक रोज यहाँ पर बैठते थे आज नहीं है। सभी जो गुरु ग्रंथ आचार्य उपाध्याय रविंद्र मणि जी, श्री नमलिंग मुनि मठ साहब ने
शोक संदेश मंगवाए हैं परिवार के लिए, और खुद भी हतप्रभ हैं कि जीवन की अनहोनी अपनी जगह अटल है और उसके साथ किसी का विधि का विधान नहीं चल पाता है। हम सब भी नतमस्तक हैं कि हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं और विधि के विधान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। इस परिवार में जो भी नाम है, श्रृंखला है, श्री कीमतीलाल जी जैन साहब, श्री शोरीलाल प्रकाशवंती जैन दुग्गड़, और जो दस का परिवार है, 10 का क्षेत्र रहा है, अब लुधियाना है। श्रीमती प्रवेश जैन धर्मपत्नी, बेहद आदरणीय सुश्राविका श्रीमती प्रवेश जैन, लुधियाना के सभी संघों में सम्मान उन्होंने जो बनाया है, अपना स्थान बनाया है और अपना कार्य क्षेत्र भी सिविल लाइन को बना रखा है। संजीव शमा जैन पुत्र वधु दीपक मीनू, वनीता जैन पुत्र वधु विशाल निधि जैन पुत्र वधु सिल्की पमेल जैन समाना जो उनके बेटी एवं दामाद जी हैं। श्रीमती मंजू कांता जैन भाभी, धर्मपत्नी स्वर्गीय मंगल दास जैन, मुदित गौतम दीक्षित कनाडा के जो पोत्रे हैं, नीतिका तुलिका यागिनी गार्गे पोत्रियां, अतिशय दोता दीक्षिता कनाडा, और सिद्धि जो है दोतियां हैं। ससुराल पक्ष श्री चरणदास, विनोद कुमार, दिनेश कुमार, निर्मल कुमार पट्टी एवं दिल्ली में जो परिवार अब रह रहा है। महावीर एंटरप्राइजेज, महावीर एक्सक्लूसिव, पद्मश्री महावीर एंटरप्राइजेज एवं जैन एंटरप्राइज के नाम से ये औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। तो इस परिवार के लिए संवेदना भी है और धर्म संदेश भी है कि आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके भाई श्री कीमतीलाल हैं, धर्म के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम था। तो समय ज़्यादा नहीं ना था, तो 77 था और बहुत ही कार्यशील थे। और मैं कई बार सोचता हूँ कि ये विधि का क्या विधान है, परंतु कई बार ये भी सोचता हूँ कि ये शायद अच्छा ही है। जैसे पंछी एक किसी पिंजरे में बंद है कि और पिंजरा खुलता है और पंछी उड़ जाता है, ऐसे ही क्षणों में लाख 3-4 बजे जिसको हार्ट अटैक बोलेंगे, हार्ट अटैक आया है। कोशिश की गई है कि मेडिकल एड के माध्यम से कुछ हो सके, परंतु जब तक हॉस्पिटल पहुँचते हैं सब कुछ समय अनुसार हो गए हैं। और शास्त्र कहते हैं कि वंशासी जीर्णानि यथा बहाय, नवानि ग्रहणानि नरोप्राणि, तथैव देहानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण पर होने पर हम उसे उतार पहनते हैं, वैसे ही शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर, पूर्ण होने पर ये आत्मा उसे उतार पहनती है और अपने कार्य क्षेत्र की ओर, अपने जीवन की ओर बढ़ जाती है। तो कीमतीलाल जी ने बहुत सुंदर धार्मिक भव्य जीवन किया है। हम उनको नमन करते हैं और परिवार के लिए यही प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों के बताए हुए आदर्श पर चलें। एक बात और याद आ रही है, 2001 का चतुर्मास था, महासाधि बीना जी महासाब का। गुरुदेवों की भावना होती है कि कर्म के क्षेत्र में प्रेरणा दे रहे हैं, त्याग के क्षेत्र में प्रेरणा दे रहे हैं। तो सच्चिदा जी माधव ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, जिनको अब कुछ जरूरत नहीं है, मोह से बंधे हुए आप लोग स्वर्ण आभूषण वगैरह पहनते हैं, क्या जरूरत है, तो त्याग कर देना चाहिए ताकि आपका मोहनियम बंध का कर्म टूट जाए। और उस वक्त कई जो है बुजुर्ग सौभाग्यशाली कहूँगा, उन्होंने ये नियम लिया कि हम ये छोड़ते हैं। और कीमतीलाल जी ने ये छोड़ा ही नहीं, अपने हाथ में जो था कहते मैं छोड़ता भी हूँ और इस वक्त जो पहना हुआ है वो संघ को प्रदान करता हूँ। और यानी श्री संघ सिविल लाइन को तो मेरे को याद आ रहा है, लगभग 2,40,000 रुपये का वो गोल्ड था, 2,40,000 रुपये के लगभग का गोल्ड है। इतना महंगा शायद उस वक्त तो 50,000 के लगभग रेट था। तो वो उन्होंने जो हाथ में था उस वक्त पहना था, वो यहाँ पर प्रदान कर गए सहर्ष। तो ये बहुत संतों की कृपा होती है, जब उनकी इतनी भावनाएं दुखी हो जाते हैं तो उन्होंने सहर्ष उसके बाद जीवन पर्यंत का ये त्याग लिया। तो आज हम उस दिव्य आत्मा को नमन करते हैं, शास्त्रीय प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं
कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था, ले गया, परंतु क्योंकि 10 के लगभग नाम हैं जो आज के अवसर पर उनके चरणों में भावांजलि रखेंगे, तो सभी से प्रार्थना है क्योंकि नाम जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में अपने भाव रखें और सभी को समय मिल सके। इस में मैं आमंत्रित करूँगा जो पारिवारिक 2 नाम हैं जो पहले आ जाएंगे। श्रीमती मधु जैन हैं जो उनकी साढ़े आज हैं, पारिवारिक हैं और वो आकर अपने भाव रखे। उसके बाद यात्री जैन जो पोत्री है, पोत्री श्रीमती मधु जी। हमारे परम आदरणीय जीजा श्री केमतीलाल जी जैन अचानक हमारे बीच में से चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मृत्यु अटल है, हम सभी जानते हैं, लेकिन परिवार में से जब कोई अपना प्रियजन जाता है तो वियोग असहनीय हो जाता है। प्रकृति का संयोग है ये। थोड़े दिन पहले हमारे बड़े भाई साहब श्री विनोद कुमार जैन वो गए और अब एक आघात अभी हम सह नहीं पाए कि दूसरा आघात हमें आंदोलन कर गया। जीजा श्री जाने से पहले लगभग सभी के साथ उनका मेल हुआ। दिल्ली में गए तो भाई विनोद साहब के अंतिम संस्कार में सबसे मेल हुआ, सबसे निछावी ग्रहण भी किया और यहाँ जाप के रूप में सारा परिवार एकत्रित हुआ, सारा समाज एकत्रित हुआ। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि अरे वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। हमारे लिए इस सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन है। जीजा श्री जी का जीवन आरंभ में बहुत ही संघर्षमय रहा। सन 1947 में पाकिस्तान के विभाजन के बाद उनकी फैमिली को यहाँ आना पड़ा। वो बहुत छोटे थे, माँ पिता का साया पहले उठ गया था। माता श्री प्रभाषवंती ने अपने दोनों बच्चों श्री मंगलदास जी को, श्री कीर्तिलाल जी को अपने अथक परिश्रम से उनको लालन पालन किया। बहुत मेहनत की उनको बड़ा करने में। कम उम्र में ही बच्चों ने माँ का सहारा बने। उन्होंने बहुत मेहनत की, नौकरी की, छोटे छोटे व्यवसाय किए, अपनी आजीविका चलाई और परिश्रम से अपने परिवार को सक्षम बनाया। गुरुदेव श्री शास्त्री श्री पदम मुनि जी का शरणा मिला, उनकी अपार कृपा हुई। वे धर्म का शरणा लेकर धीरे धीरे उन्नति के पथ पर चलते गए और अपने परिवार को समृद्ध किया। बहन परवेश दीदी ने जीजा जी का पूरा साथ दिया। जीजा जी हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी बहन की वजह से मैं धर्म में जुड़ा हूँ। यह उनकी बहुत ही सरल और विनम्रता थी कि वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी बहन की वजह से मैं आज धर्म से जुड़ा हूँ। जो भी औरत को धर्म के प्रति अटूट आस्था थी, अटूट श्रद्धा थी। आज हम मेरी भावना सुन रहे थे तो मुझे लग रहा था कि एक एक शब्द उन्होंने अपने जीवन में रूपांतरित किया हुआ था। सारे गुण उनमें बहुत भरे हुए थे और वही संस्कार उनके बच्चों में संजीव, दीपक और विशाल सिद्धि में देखते हैं। उन्होंने बच्चों को हमेशा सिखाया कि धर्म से जुड़ो, धर्म से नहीं। पूरा जीवन उन्होंने धर्म सेवा, समाज सेवा में लगाया। सुंदरनगर में वो 40 साल रहे। वहाँ पे नियमित रूप से स्वाध्याय करते थे, करवाते थे, धार्मिक आराधना सबको करवाते थे। परवेश दीदी पूरा उनका सहयोग देती थी। उनके ही संस्कारों का प्रतिफल कि उनका बेटा दीपक आज भी घर में बहुत अग्रणी है। वो हमसे कहा करते थे कि मेरे से 5 गुना मेरा बेटा आ गया और बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते थे। कह रहे थे यही मेरी पूंजी है, यही कमाई है कि मेरे बच्चे धर्म में लगे हुए हैं। और वाकई हम देखते थे जैसा परिवार ये है ऐसा हमने अपने परिवारों में और पूरे समाज में ऐसा परिवार नहीं देखा। बच्चे छोटे थे, बिना समय दिए वो अपने व्यवसाय की तरफ नहीं जाते थे। इवन उनकी शादियाँ भी होती, नई शादी होती थी, तब भी उन्होंने समय का अपना नियमित अभ्यास किसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि बहुओं भी उनके साथ लगी। तो पूरा परिवार एक धार्मिक परिवार बना। ये सब उन्हीं की वजह से है। उनका जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। उनका वो बहुत ही नेक दिल और मिलनसार थे। हर धर्म कार्य में उनका प्रमुख सहयोग रहता था। दान, धर्म, राशन वितरण, गरीब कन्याओं के विवाह में साथ देना, अपने सहधर्मी भाइयों की सेवा करना, जिसका कि वो अपना
में एक अभिमान था कि मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सरलता से सब कुछ कर जाते थे। शायद इसी का फल था कि उनके परिवार में सब उनका आदर इज्जत मान बहुत करते थे, उनकी आज्ञा को कभी किसी ने नकारा नहीं। वे सही मायने में एक अच्छे सुश्रावक थे, उनके अंदर जागृति थी, हमेशा वो आत्म चिंतन में ही रहते थे। हमें अब आभास होते हैं कि उनके अंदर से शायद कुछ आभास था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा। रात को हम सब बैठे थे तो देखा कि एक नया सूट सिलवाया हुआ था और वो दीदी को बोलते थे कि इसको मेरे किसी विशेष प्रयोजन में पहना देना। और जब लिफाफे बनाने लगे तो उनके हाथ से लिफाफे बने हुए थे, उन्होंने नाम लिखा हुआ था। पता नहीं वो क्या फील करते थे, क्या नहीं, हम नहीं जानते। और विशेष उनकी डायरी पढ़ी हमने। डायरी में गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी के प्रति श्री रविंद्र जी ने कहते मैंने ऐसा चतुर्मास कभी नहीं देखा, और उनके हृदय के उद्गार उसमें अंकित हैं। तो धन्य है कि आत्मा, हमें गर्व है कि हमें उनका सानिध्य मिला। हमारे साथ ही वो धर्म की चर्चा घंटों करते रहते थे, कभी किसी की निंदा चुराई कभी नहीं किसी ने की। हर पल वो अपने मृत्यु के प्रति सजग थे और अपनी हर ग्रंथि को किसी के साथ कुछ मन मुटाव है वो भी खोल कर गए। हमने देखा दिल्ली में भी आए, उनकी किसी परिवार से छोटी सी बात में अनबन थी, कभी बोलना चाहना नहीं हुआ। वो वहाँ चौथे के अवसर में बैठे भाभी से बोले, मिच्छामी दुक्कड़म करके गए। रास्ते में हम सारे उन्हीं की बातें कर रहे थे कि देखो जिन्हें कोई ग्रंथि अपने पास लेके नहीं गए, वो अपने आप से बिल्कुल खाली होके गए। ऐसी आत्मा को देख क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं सदगति मिलेगी। बच्चों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो सुकून माँ की गोद में और पिता के लिए सिर में हाथ रखने से मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में वो सुकून नहीं मिलता। और माँ बाप आपको जो दे जाते हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते। उनकी दिली दुआएं आपको हर स्थिति में कवच का काम करती हैं। खुश नसीब हैं ये बच्चे जो माँ बाप की कीमत समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। और सभी बच्चों से संजीव, दीपक, विशाल हम अपेक्षा करते हैं कि उनके संस्कारों को अपने आप में जीवंत रखें, उनके नाम को रोशन करें। ये दिव्य आत्मा निश्चित रूप से देवलोक में ही गई है। अंतिम समय, अंतिम वेला में उन्हें कोई वेदना नहीं हुई। ये सभी भावना हम भाते ही हैं कि मेरा ऐसा ऐसा मरण हो, उनकी भावना फलित हुई है और ये उनके शुभ भावों का ही परिणाम है। हम भी ये भावना भाते हैं कि वे शीघ्र ही अपने चरम लक्ष्य इस कार्य को प्राप्त करें और परिवार जनों को ये वियोग सहने की क्षमता दें। वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर ना लौट के आ पाएंगे। बिछड़े कुछ इस आदत से ये रुत बदल गई। एक शख्स क्या गया, सारे परिवार को समाज को सूना कर गया। दिवंगत के प्रति बेहद आदर श्रद्धा के भाव के साथ जिन्हें अपने भाव रखे। अभी श्रृंखला में जो उनकी पुत्री है यागी हुआ है, और उसके बाद मिस्टर रमेश जो पड़ोसी हैं और हमारे जी संघ की आदरणीय शरीर जय जिनेन्द्र जी। याद आता है वो प्यार जो उनकी हर डांट के पीछे छुपा रहता था। याद आता है वो हर पल जो उनके साथ गुजारा था। दादू आप कहाँ चले गए? आज हमारा घर आंगन सूना हो गया है। दादू से ही हम अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाते थे। वो दादू ही तो थे जो हमारी हर प्रोग्रेस को देख खुश हो जाते थे। हर पल धर्म की और ज्ञान की बातें बताते थे। उनका हर समय स्वाध्याय और ध्यान में ही बीतता था। जब दीक्षित भैया और दीक्षिता दी कनाडा गए थे तब वह थोड़ा नाराज तो हुए, पर उनकी सफलता को देख उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद देते थे। और जब हमारे घर कार्की का जन्म हुआ तब दादा दादी दोनों बहुत खुश हुए और वह कार्की को प्यार से गागरू कहकर बुलाते थे। वह माली थे हमारी बगिया के, हम फूल थे उनकी चमन के। वह माली थे हमारी बगिया के, हम फूल थे उनकी चमन के। दादू आप बसे हैं हमारे दिल में, हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे।
दादू, आप बसे हैं हमारे दिल में, हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। मिस यू दादू। आज की शोक सभा एक ऐसी पुण्यात्मा के लिए रखी गई है जिनका स्मरण आते ही कोई भी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मन में उठे उद्गारों को रोक नहीं पाते। स्वर्गीय श्री कीमती लाल जी का जीवन भी उनके नाम अनुरूप धर्म से ओतप्रोत अनमोल संस्कारों से बंधित था। मेरा परिचय उनसे पिछले 3 वर्षों से हुआ। धार्मिक चर्चा के अतिरिक्त वे किसी अन्य विषय पर बातचीत करना पसंद नहीं करते। उनकी दिनचर्या सामायिक प्रत्याख्यान, गुरुदर्शन, प्रवचन, स्वाध्याय से शुरू होकर प्रतिक्रमण पर समाप्त होती थी। उनका सादा जीवन और उच्च विचार ही जीवन का ध्येय था। वे शांत, सहनशील, दान पुण्य में विश्वास करने वाले इस बात का साक्षात परिमाण साध्वी वीणा जी के चतुर्मास में पहने हुए सभी जेवरों का आजीवन परित्याग कर और दान देकर प्रस्तुत किया। कल रमणीक मुनि जी ने भी उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हमने अपना एक प्रिय सूचरावक खो दिया जिसकी क्षति अपूर्णीय है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। उन्होंने धार्मिक पुस्तकों और आगमों का अपार भंडार संग्रहित किया हुआ है। धार्मिक चर्चा में उन्हें अपार सुख की अनुभूति होती थी। उन्होंने स्वयं भी अपने धार्मिक भावों को लिखित आकार दिया है जो परिवार के लिए एक धरोहर बन गई है। उनके मन में आगम यात्रा के लिए भी विशेष उल्लास था। वे मृत्यु को उसकी अटल सच्चाई से विमुख नहीं थे और मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में मानते थे। भगवती सूत्र के अनुसार मृत्यु को हमेशा याद कर उसे समर रूप में अपनाना जानते थे। इस अटल सत्य की चर्चा प्रायः अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रवेश जी से हमेशा जदा तदा किया करते। शायद इसका आभास उनकी आत्मा ने पहले ही समझ लिया था। मृत्यु पर दान के लिफाफों पर स्वयं नाम लिखना और किन किन संस्थाओं को देना है, अंतिम समय पर समय सूट सिलवा कर रख दिया कि ये मैं किसी विशेष अवसर पर पहनूंगा। ऐसी तैयारी को कोई धर्म में लिप्त रहकर विकारों की निर्जरा मोह माया के बंधनों से निर्लिप्त मुक्त आत्मा ही कर सकती है। एक दिन पहले उनसे बात करते हुए कहा कि मन में जो भाव हो और परमाद न कर उसी समय करो, फिर पता नहीं समय मिले या ना मिले। मैं शासन देव प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परिवार उनके धार्मिक पक्षियों पर चलता हुआ आगे बढ़े, उन्हें इस आघात को सहन करने की शक्ति दे। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से उस दिवंगत दिव्य आत्मा को जिनेश्वर देव अपने चरणों में स्थान दे। उस भव्य पुण्य आत्मा के लिए हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद बेटी। अब इस श्रृंखला में मैं नमस्ते कदम श्री अशोक थापर जो पक्षी विहार से उनके सहयोगी रहे हैं और उसके बाद पंकज एपोवर वाले वो है हम तैयार जो हमारे पिता पुत्र हैं उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये विलास जैन जिन्होंने अपना सारा जीवन पाठ पूजा, समाज सेवा और धर्म कार्य में लगा। वो जैन समाज के साथ साथ दूसरे धर्मों का पूरा मान सम्मान करते थे तथा दूसरे धर्मों को लोगों को भी जैन समाज की भूमिका बताकर अपने धर्म से जोड़ने का भरपूर प्रयास करते थे। लाल जैन जी हमेशा गुप्त रूप से दूसरे लोगों की सहायता करने में बहुत ही विश्वास करते थे। उनका मन का बहुत ही आनंद महसूस होता था जब गरीब जरूरतमंद लोगों की गुप्त रूप से सहायता करते थे। लाल जैन जी द्वारा दिखाए हुए समाज सेवा धर्म के कार्यों को उनके बेटे बेटी समाज बखूबी निभा रहे हैं। उनके तीनों बेटे बेटी भी बहुत ही धर्म कार्य और समाज सेवा में अग्रणी है। उनका छोटा बेटा विशाल जैन
जो पिछले कई वर्षों से हमारी पक्षी सेवा सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, वह सेवा पक्षियों की बखूबी सेवा करता रहता है और जितने भी बीमार पक्षी है उनकी वो बहुत दिल से जी जान से सेवा करता है। हम उनको प्यार से डॉक्टर साहब भी कहते हैं और वह पक्षियों की इतनी सेवा करता है कि जैसे ना उनका कोई बच्चा बीमार हो गया हो उस तरीके से वो पक्षियों की सेवा करते हैं। तो ये सब बहुत कीमती लाल जैन द्वारा जो उन्हें आदर्श दिए गए हैं उसका ही परिणाम है। बाकी दोनों बच्चे भी ऐसे ही समाज सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी और समाज की समाज सेवा के कार्य कर देते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि बहुत कीमती लाल जैन को अपने चरणों में स्थान दे। उन सीधा ही मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने इतनी सेवा की है, उन्होंने सारा जीवन अपने साधु साधुओं की सेवा में लगा दिया, पूरा जैन धर्म के नियमों का पालन किया है। भगवान करे उनको मोक्ष प्राप्त हो और उनके प्रति परमात्मा को उनको दुख सहने की शक्ति दे। धन्यवाद अशोक जी। और श्रृंखला में पंकज जैन और उसके बाद जो नाम है भाई श्री अशोक जैन जो नूरा वाला के सेक्रेटरी साहब हैं वो दिया। आज की इस शोक सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज हम एक निष्ठावान धर्मपरायण खुश श्रावक हमारे आदरणीय श्री कीमतीलाल जी जैन, जिनका कल अचानक से परमात्मा के चरणों में जाना हो गया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे महामंत्री जी ने हमारे आदरणीय अंकल जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में हमें सभी को विस्तृत रूप से बताया और हमें अंकल जी के साथ मिलने का, बैठने का अवसर जितना भी प्राप्त हुआ, उनसे हमने यही ग्रहण किया कि धर्म के सिवा कोई सही रास्ता नहीं। आप व्यापार में सभी अच्छा तभी चल सकते हो अगर आप धर्म के क्षेत्र पर चल रहे हैं। धर्म की भावनाएं जिनके मन में हैं, वो व्यापार में भी ईमानदार रहते हैं। तो यही बातें उन्होंने बताई। हैदराबाद श्री संघ उनका अति धन्यवादी है, क्योंकि उनके आने के बाद हमें एक ऐसा साथी प्राप्त हुआ दीपक जैन जी के रूप में, जिन्होंने स्थान की रूपरेखा को, धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी साथियों को इतनी प्रेरणा दी कि जब भी चतुर्मास हो या चतुर्मास ना भी हो तो ये हम सभी को प्रेरित करते हैं कि आज तिथि है, आज हमने प्रतिगमन करना है, आज हमने संबर करना है। मैंने तो ये देखा है कि जो अंकल जी ने संस्कार उनको दिए वो उन संस्कारों से भी ऊपर चले गए, क्योंकि आजकल घरों में पोषणशाला देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दीपक जी ऐसे भाई जिनके घर में जाओ तो ये गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने धार्मिक जीवन को भी एक साधु के रूप में भी जब भी कोई तिथि होती है तो पोषण करते हैं, घर पर ही संपर्क करते हैं। तो उनके परिवार में ये धर्म की भावनाएं अंकल जी के संस्कारों से आई, आंटी जी के संस्कारों से आई और उन संस्कारों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये संस्कार आगे तभी बढ़ते हैं कि अगर परिवार से साथ मिलता है, पहले बड़े बुजुर्गों से साथ मिल जाए और उसके बाद धर्मपत्नी से और बच्चों से साथ मिल जाए। क्योंकि आजकल व्यापार की पोजीशन ऐसी है कि बच्चे ये कहते हैं कि हम लेके जाएंगे, पापा आप जल्दी चले जाओ, लेकिन इनके परिवार में ये भावना है। इनका बेटा दीपक जी का गौतम, वो कहता है कि पापा दुकान मैं खोलूंगा, आप स्थान में जाओ। और इनकी ये कोशिश होती है कि प्रवचन शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले प्रवचन में बैठ जाते हैं, 2 समाएं कम से कम करते हैं। तो ये भावनाएं, ये धर्म की भावनाएं कभी बढ़ती हैं जब परिवार से साथ मिलता है, परिवार से संस्कार मिलते हैं। और मैं चाहता हूं और अपने आप को और हैदराबाद समाज को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इनके परिवार के पहले तो 2 सदस्य संजीव जी और दीपक
जी अगुवा के थे, लेकिन अब दीपक जी पूर्ण रूप से हमारे समाज को संभाल रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में आगे लेके जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आगे लाइन काफ़ी ज़्यादा है, नाम काफ़ी आए हुए हैं। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनंतमा जी सरानी और हमारे पंजाब के अध्यक्ष श्री अरुण जैन जी गुगू और हमारी ऐसे जैन सभा है गोवा के चेयरमैन श्री सतीश जैन जी, प्रधान श्री प्रवीण जैन जी नावा और हमारे अभूतपूर्व प्रधान विनोद जैन जी वो भी यहाँ पर आए हैं। सभी की तरफ से, समस्त समाज की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और शासन देव भगवान महावीर स्वामी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को और हमारे समाज को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद माता जी। कर्म खूब अच्छे किए व जिंदगानी आपकी, लोग सीखेंगे इस वक्त सुनकर कहानी आपकी। तो इस श्रद्धा में अशोक है, सेक्रेटरी जुड़ा वाला आ गए और जो उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विशाल हैं जो सुश्रावक हेमाबाद से हैं, वो आप क्या हमारे मध्य सथानवासी जैन समाज के धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री कीमतीलाल जैन, खिलौने वाले सपुत्र सुश्रावक श्री शोरीलाल जैन आज हमारे मध्य नहीं रहे, लेकिन उनका दिखाया हुआ मार्गदर्शन जैन परिवार को हमेशा खलता रहेगा। कहाँ खो गए तुम, ढूंढते रहे हम, आँखों में आंसू बहने लगे हैं। कल तक थे जो अंग संग, कल तक थे जो अंग संग, आज दिवंगत तुझे हम कहने लगे हैं। कहाँ खो गए तुम, ढूंढते शेषन नूरवालों लुधियाना की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सधर्मी भाई और बहनों, आज हमारे मध्य दानवीर करण श्री कीमतीलाल जैन अपनी अंतिम संसारिक यात्रा पूरी करके 24/10/2023 दिनांक मंगलवार को प्रभु चरणों में लीन हो गए। ये दुख समाचार सुनकर जैन समाज नूरवाला रोड में शोक की लहर छा गई। संसार में आने वाली ऐसी आत्मा बहुत ही विशेष एवं अनमोल होती है, जिनके जाने से समाज के हर वर्ग में एवं जैन समाज में शोक की लहर छा गई एवं आँख नम हो जाती है। ऐसी विशेष आत्मा की अंतिम शांति के लिए हर कोई दिल से दुआ करता है। श्री कीमतीलाल जैन ने अपने जीवन काल में ईमानदारी, गरीब, असहाय वर्ग की मदद, समाज सेवा सहित हर वर्ग में अपने स्नेह एवं जिन्हें संभालने सभी के मन में विशेष जगह बना रखी थी, जो आज आप झल रही है। आपके जाने से जहाँ तीर्थ परिवारों को कमी ना होने वाला नुकसान पड़ा है, वही जैन समाज को बहुत नुकसान हुआ है। जैन धर्म के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन जैन स्थान में जाकर समय करना, गुरु भगवंतों की गीत राशि वाणी सुनना आपका नित्य नियम था। आपके
श्री देवकी जैन सन 2023 के चतुर्मास में नूरवाला रोड लोकेहाना में विराजत हरियाणा सिंगनी कर्मठ महासाध्वी श्री अपूर्व प्रज्ञानी महाराज साई ढाणाचार्य के पावन चरणों में प्रवचन सुनने का प्रतिदिन धर्म लाभ ले रहे हैं। गुरु श्री जी के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा बनी हुई है। प्रतिदिन समय करना आपका नित्य नियम देखने को हमको मिला। आपका दिया हुआ तन मन धन का सहयोग नूर वाला श्री संग कभी भूल नहीं सकता। आपने ऐसे जैन धर्म के संस्कार अपने पूजनीय पिता एवं माता श्री प्रवेश से ग्रहण करके अपने हृदय पटल पर विराजित किए। जैन परिवार में अपना एक सर्व निष्ठावान अपना सर्व रख खो दिया है। हमारे पूजनीय आदरणीय श्री कीमतीलाल जैन के आखिरी सांस लेते हुए उनके इन शासन देते चरणों में क्या भाव थे। ये है मनोरथ नीते रहे संत चरण में। ये है मनोरथ नीते रहे संत चरण में। अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में। ये सूर्य चंद मोक्ष मार्ग में विहार है। जिन देव तुम्हें नमस्कार बार बार है। नूरवाला रोड में चतुर्मास हेतु विराजत छोटे जैन दिवाकर श्री धर्ममुनि जी महाराज साहब की सुशिष्य रचना हरियाणा सिंगनी कर्मठ महासाध्वी श्री अपूर्व प्रज्ञा जी महाराज साई ठाणाचार्य ने जैन परिवार को इस दुख की घड़ी में धर्म संवेदना संदेश दिया है। मैं श्री संघ की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम हैं इस शोक सभा में शामिल श्री संघ नूरवाला रोड लोकेहाना के चेयरमैन श्री जितेंद्र जैन रक्षम, प्रधान श्री अवनीत जैन एवं पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जगह की कमी हो रही है। जो भाई खड़े हैं उससे प्रार्थना ऊपर गैलरी में आए। जो खड़े हैं उनका समय लगेगा 10-15 मिनट। ऊपर आप गैलरी में बहुत चेयर्स होंगी, आप चेयर और इस श्रृंखला में श्री विशाल जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे विकास जैन शक्ति सुंदर। शोक सभा में उपस्थित मेरा सभी भाई बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, माताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि सबको पता ही है, कल सुबह जैसे ही आंख खुली व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की सूचनाओं से एक बेहद ही दुखद समाचार मिला कि हमारे आदरणीय बाबूजी श्री कीमतीलाल जैन जी आज हमारे बीच भी नहीं रहे। सुनकर मन को बहुत ही गहरा आघात लगा और विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर सिविल लाइन में जाप की श्रृंखला थी, उनके परिवार की ही बारी थी और उस बारी के अंदर भी उन्होंने पूरा दिन यहाँ पर व्यतीत किया, सबसे मिले जुले। जैसे कि महामंत्री जी ने बताया कि जीवन की एक अटल सत्य है कि जो भी इंसान ने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। महत्व इस बात का है कि उसने अपनी जीवन यात्रा के अंदर क्या कार्य किए, धर्म के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, गुरु भगवंतों के लिए, साधु साथियों के लिए क्या किया। इसकी एक जीती जाती मिसाल है हमारे आदरणीय सुश्रावक श्री कीमतीलाल जैन जी।
जिन्होंने अपने जीवन काल में एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे सूचनावक धर्म का शरणा लेते हुए जो उन्होंने पूरा जीवन धर्म के कार्यों में लगाया, वो अपने आप में हम सब के लिए एक मिसाल का काम करती है। हम जैसे कि जो हमने कीर्तिलाल जी को, मैं मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है लगभग 23-24 सालों से मैं इस परिवार के बहुत ही नजदीक रहा हूँ। रिश्ते में इनका जो बड़ा बेटा है संजीव जी, वो मेरे सारू साहब भी हैं। इस परिवार को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। सिर्फ और सिर्फ देखो, हर आदमी अपने परिवार के लिए हर कुछ कार्य करता है, लेकिन समाज के लिए इस परिवार ने जो कार्य किए हैं, भगवंतों के लिए जो कार्य किए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। ये भी कुछ दिन की पहले की बात है, शायद सोम मंगलवार की बात है कि दीपक जी खरगोवाल से कथा सुनकर सिविल लाइन में अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए घर पर पहुंचे। उसी समय सिविल लाइन से आराध्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के छोटे संत गोची के लेकर घर पर पधारे थे और उस समय गोची लहराते हुए बाबू जी ने एक शब्द कहा गुरु भगवंतों को कि ये जो मेरा बेटा दीपक है, ये धर्म के कार्यों में मेरे से कम 5 गुना आगे है। देखो, जब एक पिता अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करता है, उस पिता की छाती कितनी चौड़ी होती है वो पिता ही जानता है। और वाकई में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेटा 5 गुना आगे, लेकिन इसको कहते हुए शायद मुझे फख्र भी होगा कि वाकई में संजीव जी, दीपक जी, विशाल छोटा सबसे बेटा, इन्होंने जो धर्म के क्षेत्र में अपने पिता से संस्कार लिए, अपनी माता से संस्कार लिए, वो अपने आप में एक सराहनीय है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समय बहुत हो गया, मेरे पीछे भी शायद एक वक्ता है बोलने वाले। भाऊ कीर्तिलाल जी राशन वितरण के अंदर भी जो श्री रूप आत्म जैन सभा थी, उसके भी प्रेसिडेंट थे। पिछले काफी सालों से, काफी अरसों से 60-70 परिवारों को राशन वितरण करना, और भी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे, हमारे खैबोवाल के साथ भी जुड़े हुए थे। समय समय पर जब भी हमारे समाज को किसी भी चीज की दिक्कत परेशानी हुई, हमारे समाज को किसी भी चीज की जरूरत हुई, तो इस परिवार ने हमेशा ही हमारे समाज के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद रखा। मैं महासभा के प्रधान श्री प्रफुल्ल जी और समस्त उनकी कार्यकारिणी, खैबोवाल के प्रधान श्री पंकज जैन मालकर, चेयरमैन श्री सुरेंद्र कुमार जैन और समस्त उनकी कार्यकारिणी की तरफ से इस दुख की बेला में परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। श्री संघ सुंदरनगर के सेक्रेटरी श्री विकास जैन साहब और उसके बाद जो नाम है दीवान जैन श्री रूप आदम संघ से बोलेंगे और अंत में रहेंगे आदर परम आदरणीय हमारे ब्रदर। शोक सभा में उपस्थित सभी को सादर जय हिंद। आज हम हमारे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री कीर्तिलाल जी जैन को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित देने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बाबूजी का सुंदरनगर समाज के साथ लगभग 40 साल पुराना रहता है, क्योंकि लगभग 40 वर्ष तक सुंदरनगर में बाबूजी रहते थे और आज भी सुंदरनगर के साथ इनका नाता वैसे ही रहा, क्योंकि जो राशन वितरण का कार्य है इनका सुंदरनगर स्थानक में लगातार निरंतर चलता रहता है और सुंदरनगर का बच्चा भी बाबूजी को जानता है, क्योंकि स्थानक में आकर बाबूजी ने बच्चों को प्रतिक्रमण सिखाना और ये इसका कार्य दिन प्रतिदिन बाबूजी का जीवन धर्म से ओतप्रोत और सरल आत्मा के स्वभाव वाले थे। ऐसी आत्मा जो देव गुरु धर्म के प्रति हमेशा समर्पित थी। उनका सारा का सारा जीवन गुरुओं के प्रति समर्पण भावना, गरीब असहाय वर्ग की सहायता करना, जिसके संदर्भ में रूप आत्म जैन संघ के प्रधान के साथ हमारे लाला दसूंदी राम जैन चेयरमैन के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य किया। गुरु दर्शनों के लिए जाना, लंगर लगाना, राशन वितरण, बच्चों द्वारा जाना, समाज की सेवा में हमेशा आगे रहते थे। और आज हमारे लाला दसूंदी राम के पुत्र अनिल वरिष्ठ, जो कि हमारे संघ के वरिष्ठ प्रधान अनिल जैन जी
रूप आत्म संघ के चेयरमैन के रूप में उनके साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और हमारे वर्तमान के चेयरमैन संजय जैन निशा जी जो कि मेरे चाचा जी भी, उनके साथ भी इनका कार्यकाल, उनके कार्यकाल में कंधे से कंधा मिलाकर दान के रूप में संघ को हमेशा सहयोग देते रहे। 2015 में मैंने बाबूजी को पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज के चतुर्मास में बाबूजी का तपस्या करना, स्माइट करना, ये उनकी चर्या थी। और उनकी धर्मपत्नी हमारी पूज्य माता आदरणीय श्री श्रीमती प्रवेश जैन जी, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अपना साथ दिया। और माता जी भी हमारी सन्मति श्राविका संघ की महामंत्री के रूप में कार्य किया है। वैसे ही बाबूजी के साथ स्थानक में आकर साधु साधुओं के दर्शन करना। और भाई संजीव जी, दीपक जी, विशाल जी से यही कहूंगा कि आप भी उनके आदर्शों के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ही उनका नाम रोशन करें। हर घड़ी हर पल आपकी याद हृदय पटल पर विराजमान है। आपकी सत्य निष्ठा, दानशीलता का हम आदर करते हैं। आपके सभी गुण हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मैं सुंदर नगर में विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज जगराव, उत्तर भारतीय गौरव श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब चंडीगढ़, महासाध्वी पूज्य गुरुनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज दिल्ली, महासाध्वी पूज्य गुरुनी मैया श्री श्रुति जी महाराज साहब सदुरगढ़, इनकी तरफ से भी दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। और चतुर्मास संयोजक समिति के चेयरमैन लाला मोतीलाल लक्ष्मी जैन सनब्राइट होजरी, सुंदर नगर के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, मुख्य सलाहकार श्री राकेश जैन नवकार, अध्यक्ष श्री मधीर जैन जी, वरिष्ठ उप प्रधान श्री अनिल जैन जी, सन्मति श्राविका संघ के प्रधान हर्षवाला, सन्मति युक्ति संघ के प्रधान पूनम जैन और हमारे पूर्व कार्यकारिणी प्रधान सुरेंद्र जैन कॉम्प्लेक्स एवं समस्त कार्यकारिणी की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। रहने को सारा संसार में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए कीमती जी ऐसे भी जाता नहीं। बहुत याद आओगे मेरे प्रिय दोस्त। महान समाज सेवी सुश्रावक श्री कीमती लाल जी जैन की शोक सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों सादर जायने के जब उनके निधन के बारे में मुझे मंगलवार सुबह 6 बजे हमारे रूप आत्म संघ के जनरल सेक्रेटरी अमित जी का फोन आया कि प्रधान जी नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में सन्नाटा छा गया, मुझे होश नहीं रहा। काफी प्रयत्न करने के बाद अपने आप को संभाला और मन में विचार किया कि इंसान ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसे टाल नहीं सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अपने अपनों को खो देना किसी भी परिवार के लिए दुखदायी घड़ी होती है। किसी घर के मुखिया का या पिता का चले जाने से बड़ा कोई अन्य दुख नहीं होता, लेकिन इस भव बंधन से कौन बच सकता है। हालांकि कोई भी शब्द कीमती जी के व्यक्तित्व को उजागर नहीं कर सकता, फिर भी हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रमोद जी ने और भी प्रियजनों वक्ताओं ने बड़े विस्तार पूर्वक उनके व्यक्तित्व को उजागर किया है, प्रकाश डाला गया है और कोई भी शब्द परिवार के दुख को बयान नहीं कर सकता। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सभी यहाँ पर श्री कीमती लाल जी जैन खिलौने वाले
पिता श्री किशोरीलाल जी जैन, जिनका निधन हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से अपने अपने स्नेह और निकटता के अनुसार अपने विचार रखे हैं। बहुत संक्षेप में, बहुत छोटी बातें, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा। एक उदाहरण से आरंभ करता हूं। एक संत के पास एक व्यक्ति गया, प्रणाम किया, कहने लगा, महाराज मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे जीवन की कीमत क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है। संत 2-3 सेकंड खामोश रहे, अंदर गए, एक पत्थर लाए, कहने लगे हाथ करो, हाथ पर रख दिया, कहते इसको बाजार में ले जाओ। एक जोड़ी के पास जाकर उसको ये दिखाना और लोगों कीमत डाले, पैसे नहीं लेना, इस पत्थर को वापस ले आना। जोड़ी के पास गए, कहने लगे कि मेरे पास एक पत्थर है, उसकी क्या कीमत है। जब उसने अपने हाथ पर रखवाया, क्योंकि जोड़ी जोहरात की कीमत जानता है, उसने जो उस पत्थर को देखा, उस आदमी को देखा, कहने लगा 1 लाख रुपया दे देता। कहते चलो मुझे दे दो वापस, मैं सलाह करके फिर आता हूँ। जब जाने लगा, कहने लगा ऐसा है कि तुम शायद इसकी कीमत कम समझ गए, 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ। कहने लगा नहीं, मैं वापस जाके घर सलाह करके आता हूँ। जब वो वापस आने लगा तो उसने आवाज दी कि ये बेशकीमती हीरा है, ये हीरा बेशकीमती है, कहीं यूं ही न दे देना। वापस चले गए, मुनि को कहा कि महाराज मैं हीरा दिखाया, उसने 1 लाख के करोड़ लेके जाते दफा मुझे कहा ये कीमती और बेशकीमती हीरा है। मुनि कहने लगे ये हीरा जो एक पत्थर था, ये बेशकीमती है, तुम्हारा जीवन इससे भी कीमती है। जब जाने लगा, कहने लगे बात सुनो, बहुत एक पते की बात उन्होंने कही, कैसे याद रखो, हीरे को दूसरा व्यक्ति तराशता है और तुमने जिंदगी को स्वयं तराशना है। मेरे भाई, मेरे साथी जो हमारे साथ राशन वितरण का सेवा का कार्य करते रहे, उनका जीवन बेशकीमती है। उन्होंने अपने आप को स्वयं तराशा, व्यापार में भी, सामाजिक कामों में भी, धर्म के कामों में। रूप आत्म ज्ञान संघ बोला, उससे पहले यहाँ आत्म ज्ञान सोसाइटी का कार्य हो रहा था, उनके साथ संपर्क किया। कल ही मुझे आत्म ज्ञान सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जी ने बताया कि हमारे के साथ बहुत संपर्क रहा, सहयोग करते रहे और ये संस्था बहुत कार्य कर रही है। जीवन एक अद्भुत है। देखो कि
बार कीर्तन करो आप सभी सोचते हैं अनादिकाल से जन्म और मृत्यु इस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि गवेषणा करते रहे हैं, चिंतन करते रहे हैं, खोज करते रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। जीवन सेवा से निर्मित होता है, त्याग से निर्मित होता है। कीमतीलाल जी ने जीवन में काफी किया और सबसे बड़ा काम यह है जरूरतमंद, असहाय और दुखी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। God is present in every jiva. There is no other God beside this. Who serves jiva serves the God indeed. अर्थात हर जीव में परमात्मा है और उस जीव की सेवा करना परमात्मा की सेवा है। भगवान महावीर ने मानव के लिए अपना बहुत अमूल्य संदेश 10 में सुनवाया। जरा जागना पीड़े वाही जागना मुद्दे जाग इंदिया ना हयंती ताव धर्मं समाचरे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, व्याधि सताती नहीं, इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक धर्म करो। मेरे भाई बहुत कीमतीलाल जी ने अपने जीवन में इसी सूत्र को धारण कर लिया था, शिरोधारण कर लिया था और वो सदैव दूसरों के काम आते थे। बहुत बार मिलते, जब भी वो राशन वितरण करके हम जाते, इधर आत्म ज्ञान सोसाइटी राशन वितरण करके काफी हो जाते और एक दूसरे के साथ कार्य करते। जो सेवा का कार्य, जो दीन दुखियों के काम आने का कार्य वो कर रहे हैं, वो उनका अमूल्य कार्य है और उनके कार्य की तुलना नहीं की जा सकती। जिन संस्थाओं के लिए शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, मैं उनके नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। बाल गोपाल गौशाला के श्री दर्शनलाल गड्डू जी जो है आदरणीय, उनकी तरफ से यह संदेश आया है। गुरप्रीत बस्सी गोगी जी MLA हैं जो इधर के, उन्हों की तरफ से आया है। आम आदमी पार्टी के तरफ से राकेश नानचहल जी की तरफ से अतुल जैन को कैशियर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से ये शोक संदेश आया है। चंद्रवाला जैन शाखा संघ सेवा लाइन की तरफ से ये शोक संदेश आया है। जीतो लुधियाना चैप्टर की तरफ से ये शोक संदेश आया है। जैन मित्र मंडल की तरफ से ये शोक संदेश आया है। कुलदीप जैन सुराना स्टेट इंचार्ज की तरफ से ये शोक संदेश आया है। कुलदीप जैन सुराना स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जैन संगठन की तरफ से ये संदेश है। ऐसा जैन महासभा प्रफुल्ल जैन साहब की तरफ से संदेश है। श्री रूप गौतम रतन जैन संघ की तरफ से सभी बैठे, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना है कोई भी ना उठे, अभी महाराज श्री जी का मंगल पाठ होना है, बैठे आप अपने स्थान पर, कोई भी ना उठे। बसरूर जैन दुर्गम प्रार्थना की तरफ से ये शोक संदेश है। श्री रूप गौतम जैन संघ की तरफ से ये शोक संदेश है। USPC जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से ये शोक संदेश है। बैठों से प्रार्थना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ज्ञानस्थान मंदिर सभा राधा जगन्नाथ सेवा सोसाइटी श्री जनेन्द्र गुरुकुला की तरफ से ये संदेश है। हरकेश मित्तल जी की तरफ से ये संदेश है। मार्केट कमेटी लुधियाना दर्शनलाल पवेजा की तरफ से भी ये धर्म संदेश फरमाया गया है। यह शोक संदेश है। मैं परिवार श्री प्रवेश जैन, संजीव जैन, दीपक जैन की तरफ से सभी का धन्यवाद संस्थाओं को करता हूँ। आज इस परिवार ने जो संस्थाओं के लिए कृपया बैठिए, मेरी प्रार्थना है कोई भी खड़ा होने का भाव न रखे। जिन संस्थाओं के लिए दान राशि निकाली है उन संस्थाओं के लिए बाबे राशि समेत आए हुए हैं और मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ कि अधिकारी हो तो वो ये राशि प्राप्त भी कर सकते हैं। हमारी सभा ऐसा जैन सभा सिविल लाइन, आंखों का हॉस्पिटल सिविल लाइन, ऐसा जैन सभा किशोर नगर, महिला मंडल शाखा संघ सिविल लाइन, ऐसा जैन सभा ये शोक संदेश है। ऐसा जैन सभा नूरावाला रोड की तरफ से, ऐसा जैन सभा सुंदर नगर, ऐसा जैन
श्री महावीर सेवा सोसाइटी सिविल लाइन, पार्वती मंडल हैदराबाद, महावीर इंटरनेशनल हैदराबाद, एसएस जैन सभा टिटलूनगर, मंदिर चंडी स्वामी जी एसएस जैन सभा नूरावाला, मोतीराम महाराज समाधि साधना सर जगरांव, तवनी मंडल सिविल लाइन विजयगंज, चैरिटेबल सिविल लाइन, आदिश्वर धाम मंदिर उपकला मलेकोटा गौशाला हैदराबाद, महावीर गोविंद गौशाला देहरादून, शहीद परिवार पट पंजाब केसरी, सरहद श्री चक्रेश्वरी देवी मंदिर जी। इन संस्थाओं के लिए परिवार ने जो भी ये दान राशि निकाली है, सभी संस्थाओं की तरफ से सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। दर्शन लाल रोहिंजा चेयरमैन मंडी को मैं परिवार सर्वश्री प्रवेश जैन, संजीव जैन, शर्मा जैन, दीपक जैन, वीरू जैन, विशाल जैन, दिलीप जैन की तरफ से आप सब लोग भाई बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं और परिवार से सांत्वना की है। परिवार की और बाहर से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था की गई है और अभी मंगल पाठ होगा और उसके बाद सभी उनसे प्रार्थना भोजन लेकर जाए। सिजन सुवासु